This evening, before we worship our God, let us look unto the Lord in prayer. आज शाम को हमारे खुदा की इबादत करने से पहले, खुदा के कलाम का भी मुताला करने से पहले चलें हम दुआ करके खुदा को तकते हैं। Our loving heavenly gracious Father, once again we thank you and we praise you, Lord. हमारे आसमानी प्यारे बाप, और एक बार हम आपका शुक्र अदा करते हैं, आपकी इबादत बजा लाते हैं। Father, we thank you and we praise you for loving us and for choosing us before the foundations of the earth. आसमानी बाप, जमीन और आसमान की खिलकत से पहले ही हमें चुनने के लिए और आपका हमें बनाने के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। Father, also I thank you for sending your only begotten Son to redeem me and to sanctify me and to make me your child. आसमानी बाप, मुझे छुड़ाने के लिए और मुझे आपके रूहानी फर्जंद बनाने के लिए मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। And also, Father, I thank you for sanctifying us with the precious blood of our Lord and Savior Jesus Christ and giving us this opportunity to worship you in thy house. और आसमानी बाप, आज शाम को आपके घर में आकर आपकी इबादत करने के वास्ते मुझे भी मौका देने के लिए आपके आसमान लश्कर के साथ मुझे भी शामिल करने के लिए शुक्र अदा करता हूँ। Father, to worship your holy name, Lord, speak with all of us and strengthen us from thy word. खुदावंद, आपके कलाम के जरिए से हमें मजबूत बनाएं ताकि हम आपकी इबादत सही तरह से कर पाएं। Father, fill us with thy spirit and also, Lord, strengthen us by thy truth, Lord. आसमानी बाप, आपके पाक रूह से हमें और भर दें और आपकी सच्चाई से हमें मजबूत बनाएं। Father, also we pray that, Lord, as we are standing to share thy word, hide us under your arms, Lord. खुदावंद, आपकी सच्चाई की तालीम देने के लिए जैसे ही हम खड़े हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें आपकी सच्चाई से आप मजबूत बनाएं। Father, committing ourselves unto your loving hands, Lord, we pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आसमानी बाप, शुक्र अदा करते हुए ये छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और उन्नत जी ईश्वर के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Let us turn our Bibles to the book of Psalms, Psalm number 34. चलें हम मज़ामिर की किताब चैप्टर नंबर 34 देखेंगे And let us read this whole psalm one after one. चलें हम मज़ामिर नंबर चैप्टर 34 जो है, इसका पूरा बाब जो है, इसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। I will bless the Lord at all times, his praise shall continually be in my mouth. मेरी रूह यहोवा पर फख्र करेगी, हलीम ये सुनकर खुश होंगे। Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. मैं यहोवा का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। They looked unto him and were lightened, and their faces were not ashamed. इस गरीब ने दुहाई दी, यहोवा ने उसकी सुनी और इसे इसके सब दुखों से बचा लिया। This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. आजमा कर देखो कि यहोवा कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है। And verse number 9, Oh, fear the Lord, ye the saints, for there is no want them that fear him. बबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर यहोवा के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। Come, ye children, hearken unto me, I will teach you the fear of the Lord. वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। Keep thy tongue from evil and thy lips from speaking guile. बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और उसी की पैरवी कर। The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open unto their cry. यहोवा का चेहरा बदकारों के खिलाफ है ताकि उनकी याद जमीन पर से मिटा दे। The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. यहोवा शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। Evil shall slay the wicked, and they that hate the righteous shall be desolate. यहोवा अपने बंदों की जान का फिदिया देता है और जो उस पर तवक्कुल करते हैं उनमें से कोई मुजरिम ना ठहरेगा।
Praise the Lord. This is the psalm written by King David, ये मजमूर जो है ये दावीद का मजमूर है and the word of God in this introduction it says that a psalm of David when he changed his behavior before Abimelech, who drove him away and he departed. यहाँ पे खुदावंद के कलाम में यहाँ पे एक लक़ब है वो ऐसा है, मैं पढ़ता हूँ, दावीद का मजमूर उस वक्त का जब उसने अबीमेलेक के सामने अपनी वजह बदली, जिसने उसे निकाल दिया और वो चला गया। We know the situation and background when David wrote, when he went to the Abimelech and who drove him away and where he departed from. और इसका बैकग्राउंड हम देखते हैं कि ये मजमूर उस वक्त लिखा गया था जब दावीद ने अबीमेलेक के पास गया और उसने अबीमेलेक ने उसे भगा दिया था। In 1 Samuel we see that in chapter number 21, पहला समूएल की किताब बाब नंबर 21 में हम देखते हैं verse number 10, और आयत नंबर 10, and David arose and fled that day for fear of Saul and went to Achish the king of Gath. और दावीद उठा और साउल के खौफ से उसी दिन भागा और गात के बादशाह आकिश के पास चला गया। Achish means another name for him, Abimelech. आकिश का और एक नाम है अबीमेलेक। So David arose and fled that day for fear of Saul and went to the Achish the king of Gath. तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि दावीद उठकर साउल के खौफ से आकिश के पास अबीमेलेक के पास चला गया जो गात का बादशाह था। And even in the presence or there at the Achish, David was afraid. और आकिश के पास जाने के बाद भी दावीद बहुत डरते रहता था। And they recognized that this boy David was a king, is a king. और ये लोग पहचान चुके हैं कि ये लड़का दावीद जो उसके पास आया था वो एक बादशाह बनने वाला इंसान था। And they're speaking about David that people of Israel praising him when he defeated Goliath. और यहाँ पे उसका जिक्र ऐसा किया जाता है कि ये दावीद वो दावीद है कि ये दावीद वो दावीद है जिसके बारे में इस्राएलियों ने बहुत मदसराई करते हुए गाया कि ये उसके मुखालिफों को शिकस्त देता है। And again hearing their words, again in the verse number 12, David laid up these words in his heart and was sore afraid of Achish the king of Gath. और ये बातें दावीद के दिल में आ गईं, तब आयत नंबर 12 के मुताबिक दावीद ने ये बातें अपने दिल में रखीं और गात के बादशाह आकीश से निहायत डरा। So David is in the time of danger. The Saul was pursuing him, and also now he came to the place where there also he was so afraid. दावीद की जिंदगी में तो बहुत मुश्किलें थीं और वो साउल के हाथ से छूटकर बाहर निकला, लेकिन यहाँ गात में आकीश के पास तो आया, लेकिन इसके सामने भी वो डर रहा है। Miraculously, wonderfully, David escaped from that king Achish also. लेकिन खुदा की बड़ी रहमत से, खुदा के फजल से वो उसने दावीद ने आकीश के अबीमेलेक के सामने से उसके हाथ से छूटकर बाहर निकल गया। And he was redeemed from that fear. और उसके बाद वो उसका डर जो था आकीश को लेकर, उस डर से भी उसने रिहाई पाई। And now he is writing this psalm, and 1 to 4 verses he is saying that I will bless the Lord at all times, his praise shall continually be in my mouth, my soul shall make her boast in the Lord, the humble shall hear thereof and be glad. और उसके बाद दावीद ये गीत गाता है, मजमूर गाता है और कहता है, मैं हर वक्त यहोवा को मुबारक कहूंगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी, मेरी रूह यहोवा पर फख्र करेगी, हलीम ये सुनकर खुश होंगे। And also he calls the people in third verse to worship God along with him. और इतना ही नहीं बल्कि तीसरी आयत में वो लोगों से कहता है कि लोग मेरे साथ मिलकर मेरे खुदा यहोवा की तमजीद करें। And he is saying in third verse, oh magnify the Lord with me and let us exalt his name together. और तीसरी आयत में वो कहता है, मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। Here in this psalm we see 5 things how
David was worshipping and exalting the name of God. यहाँ पे इस मजमूर में हम 5 बातें देखेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि दावीद अपने खुदा की तमजीद किस तरह करते आया था। Number one, David exalted God as the one who hears his cry. पहली बात यह है, यहाँ पे हम देखते हैं कि दावीद अपने खुदा के बारे में कहता है कि वो अपनी दुहाई सुनने वाला खुदा है। God is the one who hears our cry. हमारा खुदा जो है वो हमारी दुहाई, हमारी पुकार और आवाज सुनने वाला है। And verse number 4 it says, I sought the Lord and he heard me. इसीलिए चौथी आयत में हम पढ़ते हैं, मैं यहोवा का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया। And also verse number 6 he says, this poor man cried and the Lord heard him. और छठी आयत में भी हम पढ़ते हैं, इस गरीब ने दुहाई दी, यहोवा ने इसकी सुनी। David cried in fear and in weakness and in trouble. दावीद ने अपनी बड़ी दहशत में और कमजोरी में और मुश्किल में रहते हुए उसने खुदा को आवाज लगाई थी। One man chasing him, that fear was with him, and also one man, he entered into the another man's court, there also he was sore afraid. उसके पीछे तो एक इंसान उस पर हमला करते हुए, जानलेवा हमला करते हुए उसे हंका रहा है, और उसके आगे तो और एक शख्स है जिसके पास वो गया था, लेकिन वो भी उसे मारना चाहता था। He is alone, he is not mighty man, he was only weak person. अब ये कमजोर हो गया है, दावीद जोरावर नहीं रहा बल्कि बेकस हो गया है। And when he cried unto the Lord, God heard him. तब उस कमजोर हालत में बेकस और लाचार होकर जब उसने अपने खुदा से दुहाई दी, आवाज दी, तो खुदा ने उसकी सुनी और जवाब दी। And dear brothers and sisters, this is the truth that God has given to us also. इसीलिए अजीजों, भाई बहनों, हमें इस बात पर गौर फरमाना है कि हमारी जिंदगी में भी हमारे खुदा ने हमारे वास्ते भी ऐसा ही कुछ किया है। Even today, through our Lord Jesus Christ, our prayers are heard. आज भी हमारे खुदावंद यीशुआ के जरिए से हमारी दुहाई, हमारी आवाज हमारे खुदा तक पहुंचती हैं। Because of our Lord Jesus Christ, our beloved God, our prayers are heard. क्योंकि हमारे खुदावंद यीशुआ जो खुदा के बेटे हैं और हमारे खुदा भी हैं, हमारी दुहाई, हमारी दुआएं खुदा तक पहुंच रही हैं। Our Lord Jesus Christ promised in John's Gospel chapter 14 verse number 13. यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 14 और आयत नंबर 13 में खुदावंद यीशुआ ने हमसे वादा किया था, And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। God who heard the cry of the David दावीद की आवाज जिस खुदा ने सुनी थी, also confidently we have this confidence in Lord Jesus Christ hearing our prayers. हमारे खुदावंद यीशुआ में वही खुदा यहोवा जो है वो हमारी भी आवाज सुनता है। And second thing, David praises God, exalts his name because he is the one who delivers. और दूसरी बात यह है कि दावीद अपने खुदा की मदद सराई इसलिए भी करता है क्योंकि अपना खुदा यहोवा खुदा जो है वो उसे छुड़ाने वाला खुदा है। Verse number 17, Psalm 34 verse number 17. 17 चैप्टर 34 की 17। The righteous cry and the Lord heareth and delivereth them out of all their troubles. सादिक चिल्लाए और यहोवा ने सुना और उसको उनके सब दुखों से छुड़ाया। And verse number 19 also. और आयत नंबर 19 भी, Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. 19 सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन यहोवा उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। When we cry out to the Lord, जब हम हमारे खुदा को आवाज देते हैं and our cry out of many troubles, और बहुत सारी मुसीबतों के बीच में से जब हम पुकारते we हैं, are surrounded by many troubles in our lives, हमारी जिंदगी में तो बहुत सारी मुसीबतें हैं, but God delivereth us out of them all. लेकिन हमारा खुदा जो है हमें उन सबों से हमें छुड़ाता है। So here, not from one trouble, but it is saying that word of God out of them all. यहाँ पे ये ऐसा नहीं लिखा गया है कि खुदा सिर्फ एक मुसीबत से हमें छुड़ाएगा, बल्कि सब मुसीबतों में से उन सब से रिहाई बख्शता है।
In Colossians chapter 1 verse number 13, कोलोसियों की किताब 1:13 में, Colossians chapter 1 verse number 13, कोलोसियों की किताब 1:13 में the word of God tells us, वहां पे खुदा का कलाम यूं फरमाता है, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear son. उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। God delivereth us from all our troubles and also from the greatest enemy, sin and darkness. हमारा खुदा जो है वो हमें हर एक मुसीबत से हमें छुड़ाएगा, तारीकी के कब्जे से छुड़ाएगा और गुनाह से भी छुड़ाएगा। On that day, David was delivered from the hands of the Abimelech. उन दिनों में दावीद को खुदा ने अबीमेलेक के हाथों से उसके कब्जे से छुड़ाया, But our God in Lord Jesus Christ today, he delivered us from sin and darkness. लेकिन आज के दिन हमारे खुदा ने हमको भी खुदावंद यीशुआ के जरिए से गुनाह और तारीकी से हमें छुड़ाया है। So David remembered that God is the one who delivers. तो दावीद ने याद रखा था कि उसका खुदा जो है वो उसे छुड़ाने वाला खुदा है। And the third thing that David praises and exalts the name of God is that God who provides. और तीसरी बात यह है जिसके वास्ते दावीद अपने खुदा की तमजीद गाता है, वो ये है कि खुदा हर एक चीज उसके लिए मुहैया करने वाला है। Let us come back Psalm number 34, read verse 9 and 10. मज़ामिर की किताब चैप्टर 34 और आयत नंबर 9 और 10। Oh, fear the Lord, ye his saints, for there is no want to them that fear him. The young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. यहोवा से डरो ऐ उसके मुकद्दसो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर यहोवा के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। Here the David is saying that there is no want to them that fear God. यहाँ पे दावीद ये कहता है कि जो कोई यहोवा से डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। And also they that seek the Lord shall not want any good thing. इतना ही नहीं बल्कि जो यहोवा के तालिब होते हैं उनके लिए किसी नेमत की कमी नहीं। David here, this psalm is writing as an anointed as a king, and as a king he is writing and saying that they that fear God shall not want anything. यहाँ पे दावीद खुदा का ममसूह बनकर और खुदा का नबी बनकर ये बातें कहता है कि यहोवा के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। And also David as a shepherd remembers God as a shepherd and says in Psalm number 23, और दावीद ये भी याद रखता है क्योंकि वो एक चरवाहा है, इसीलिए अपने खुदा को भी अपना चरवाहा मानकर वो मज़ामिर की किताब बाब नंबर 23 में ये बातें कहता है। and he says that in Psalm number 23 verse number 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. 23:1 में कहता है, यहोवा मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। Because God is the one who leads us, who provides us. क्योंकि यहोवा ही हमारा खुदा है जो हमारे आगे रहकर हमें चलाता है और हर चीज हमें मुहैया करता है और हमें खिलाता भी है। Here in this verse, Psalm number 34, verse number 10, we read that those who that seek the Lord shall not want any good thing. और 34:10 में हम पढ़ते हैं, जो भी खुदा यहोवा के तालिब होते हैं उनके लिए किसी नेमत की कमी ना होगी। God surely will provide all our needs. हमारा खुदा जो है वो यकीनन हर हाजत जो हमारी होती है वो रफा करेगा। The word of God in Philippians chapter 4 verse number 19 says, इसीलिए फिलिपियों की किताब 4:19 में खुदा का कलाम यूं फरमाता है, in our Lord Jesus Christ we moved from lackness to the divine provision. हमारे खुदावंद यीशुआ के जरिए से कमी से हम कुछ करके खुदा जो मुहैया करता है उस भलाई में हम दाखिल होते हैं। Philippians chapter 4 verse number 19. फिलिपियों की किताब 4:19,
But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. मेरा खुदा अपनी दौलत के मुवाफिक जलाल से यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। Our God is the one who provides us. हमारा खुदा जो है वो हमें सब कुछ रफा करने वाला खुदा है। And the fourth thing that David remembers at this time, that God is the one who is near. और इस वक्त दावीद चौथी बात ये याद फरमाता है कि उसका खुदा जो है वो उसके लिए बहुत करीब रहने वाला खुदा है। Because of the fear, David's heart is broken. क्योंकि दावीद के दिल में बहुत बड़ा डर पैदा हुआ था, उसका दिल टूट गया था। And verse number 18 says, इसीलिए मज़ामीर नंबर चैप्टर 34 और वर्स 18 में लिखा हुआ है, The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. यहोवा शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। God never leaves us. हमारा खुदा यहोवा जो है वो हमें छोड़ेगा नहीं। He is always near to us. वो हमेशा हमारे करीब रहने वाला खुदा है। And in our Lord Jesus Christ, this is fulfilled in our lives. और ये आयत जो है हमारे खुदावंद यीशुआ के जरिए से हमारी जिंदगियों में भी ये पूरी हुई है। God promised to the children of Israel, to the world, खुदा ने इस्राएल के बच्चों के जरिए से दुनिया से ये वायदा किया था that He promised that He will send His only begotten Son, who will be called as Emmanuel. कि वो अपने इकलौता बेटा खुदावंद यीशुआ को भेजेगा जिसे इम्मानुएल करके नाम भी दिया जाएगा। And in Matthew chapter 1 verse number 21, we see that 21 and verse 123, Matthew. इसीलिए मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 1 और आयत नंबर 21 से लेकर अगर हम पढ़ते हैं तो ये बातें वहां देखते हैं। In 23, there we see that Lord Jesus Christ is named Emmanuel. और आयत नंबर 23 में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशुआ का नाम इम्मानुएल रखा गया था। That means God with us. इसका मतलब ये है कि खुदा हमारे साथ। God the Father who is dwelling in the Lord Jesus Christ. आसमानी बाप जो है खुदा जो है वो खुदावंद यीशुआ में वो रहता था। Now the Lord Jesus Christ, who is the Word of God, is with us and near to us and always with us. और खुदावंद यीशुआ भी जो खुदा का कलाम है वो हमारे साथ हैं, हमेशा तक अब्दुल्लाबाद हमारे साथ रहेंगे। God is with us through and in our Lord Jesus Christ. खुदा हमारे साथ है कैसे? हमारे खुदावंद यीशुआ के जरिए आसमानी बाप भी खुदावंद यीशुआ में बसते हुए हमारे साथ रहता है। And the final truth in Psalm number 34, David is saying that why we need to worship our God. और यहाँ पे मजमूर नंबर चैप्टर 34 में दावीद आखिरी हकीकत इस तरह बयान करते हुए उसको लेकर खुदा की तमजीद करने के लिए कहता है, God is our Redeemer. और वो वजह यह है कि हमारा खुदा हमारा फिदिया देने वाला है। Psalm 34 verse number 22. 34 की 22 में, The Lord redeemeth the soul of his servants, and none of them that trust in him shall be desolate. यहोवा अपने बंदों की जान का फिदिया देता है और जो उस पर तवक्कुल करते हैं उनमें से कोई मुजरिम ना ठहरेगा। God redeemed David from the fear and from the hands of the enemy, and he brought him out of all his fear. खुदा ने दावीद के हर दहशत से, खौफ से, डर से उसे बाहर निकाला। इतना ही नहीं बल्कि उसके हर दुश्मन से भी उसे खुदा ने छुड़ाया और बाहर निकाल लाया था। And this fulfilled in our lives through our Lord Jesus Christ. और ये बातें भी हमारी जिंदगियों में भी हमारे खुदावंद यीशुआ की बदौलत पूरी हुई हैं। According to Ephesians chapter 1 verse number 7. एफिसियों की किताब 1 की 7 के मुताबिक, Ephesians chapter 1 verse number 7. एफिसियों की किताब 1 की 7, In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace.
हमको उसमें उसके खून के वसीले से मखलसी यानी कुसूरों की मुआफ़ी उसके उस फजल की दौलत के मुवाफिक हासिल है। Through the blood of our Lord Jesus Christ, we have redemption. हमारे खुदावंद यीशुआ के खून के वसीले से हमें मखलसी हासिल है। We have forgiveness of our sins. हमें हमारे गुनाहों की मुआफ़ी हासिल है। We are no more under the condemnation. अब हम हरगिज भी सजा के मातहत नहीं हैं। Through our Lord Jesus Christ, we are forgiven, we are redeemed, and we are secure. हमारे खुदावंद यीशुआ के जरिए से हमें मुआफ़ी हासिल हुई, हम हमारे गुनाहों से छूट गए और नजात पाए। So our God is the one, when we cry, He hears us. तो हमारा खुदा किस तरह का खुदा है? जब हम दुआ करते हैं, पुकारते हैं खुदा को, तो वो सुनने वाला है। When we are in trouble, He delivers us. जब हम मुसीबत में फंसते हैं, तो वो हमें छुड़ाने वाला खुदा है। When we are in the need, He provides us. जब हम हाजतमंद बनने लगते हैं, तो हमें हर तरह की हाजत, वो हमारी हाजत रफा करता है। When we are broken, He comes near to us. जब हम टूटने लगते हैं, तो वो हमारे करीब आने लगता है। And the greatest and final is that He redeemed us through our Lord Jesus और इन Christ. सभी बातों से भी और सबसे अव्वल बात यह है कि उसने हमें हमारे गुनाहों से खुदावंद यीशुआ के जरिए से, उनके खून के जरिए से हमें छुड़ाया है। For these great blessings and for these great truths and great works that God did in our lives, let us worship for who He is. इन अजीम बातों को लेकर, इन बड़ी बड़ी मौजिज़ों को लेकर, जिससे जिनके ज़रिए से खुदा ने हमें छुड़ाया है, इन बातों के बारे में सोचकर, ख्याल करके, इस कलाम के मुताबिक हम हमारे खुदा की इबादत करेंगे। May the God bless these few words. खुदा हम पर इस कलाम के ज़रिए से अपनी बरकतें बरसाए। Amen. आमीन।